Hype, what's up? Hope you all are doing well. So, in this video, I'm going to cover the topic from Sociology Paper 1. Okay, so the topic is Sociology and Common Sense. The points that we need to cover in this topic are what is sociology, what is common sense, the difference and the similarities between them. Okay, so let's start the topic. First of all, when we are studying about sociology and common sense, so the first thing we should know is that what is common sense and what is sociology. Okay, so as you can see that I have mentioned here a famous definition by Max Weber, who was a famous sociologist. Okay, so according to him, common sense is the routine knowledge we have of our everyday word and activities. What is common sense? Common sense is routine knowledge of our daily basis activities. It represents the knowledge that everyone knows. Basically, that is common sense. Okay, now moving on next point. It mainly focuses on belief system, on tradition system. Okay, जैसे कि for example, it's a common sensible knowledge कि women can't drive, women can't be a good driver, etc and etc, but it will completely wrong to say that women can't drive, because now in present time we have so many women who are a good driver and also a car racing championship. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अलीशा अब्दुल्ला, अमनदीप कौर, प्रगति गावड़ा और भी बहुत से लोग हैं. ओके, सो इट विल कम्प्लीटली रॉन्ग टू से दैट वुमेन कांट ड्राइव. दिस बिलीव्स में नॉट बी नेसेसरली करेक्ट. जैसा कि अभी मैंने बताया कि बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड हमेशा करेक्ट हो, ऐसा सही नहीं है. बिलीफ सिस्टम हमेशा सही हो ऐसा नहीं हो सकता. ओके, सो इन जनरल दे आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू बाय कॉमन पीपल. Now, what is sociology? Sociology is the study of different groups, economic sectors, and family lifestyles. It is studying a society's space and how everything is structured. This is the very simple definition of sociology. Okay, सोशोलॉजी क्या है? बेसिकली सोशोलॉजी जो है इकोनॉमिक सेक्टर्स के साथ साथ डिफरेंट ग्रुप सेक्टर्स, फैमिली लाइफस्टाइल्स को स्टडी करती है और सोसाइटी के बेस स्ट्रक्चर को डेप्थ में स्टडी करती है. बेसिकली यही सोशोलॉजी है. ओके, सोशोलॉजी इट्स ऑल अबाउट रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंग्स. सोशोलॉजी यूजेस रीजनिंग एंड लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो कॉमन सेंसिबल नॉलेज क्या कहेगी कि ही डिडेंट प्रिपेयर वेल सो ही फेल्ड इन एग्ज़ाम. बट सोशोलॉजी क्या कहेगी? सबसे पहले उसका वो एनालिसिस करेगी, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेगी, तब वो अपने जाके किसी कंक्लूजन या अपने किसी रिजल्ट तक पहुँचेगी. दैट्स द रीज़न वाई दिस स्टूडेंट कांट पास द एग्ज़ाम. ओके, नाउ it debunks the stereotype. Here debunk is the most important word. Okay, so it debunks the stereotype means it challenges the stereotypical minded people. It criticizes the stereotype thinking. Now moving on next slide. Difference between sociology and common sense. First of all, sociology isn't common sense. This is the main point. Sociology isn't common sense. Many people assume that sociology and common sense both are same thing, and sociology is just rooted up with the common sense. But not at all. They both are different and both are varies. But at some point, sociology and common sense are similar. Only at some points, but not at all. So, moving on next point. Common sensible knowledge. Here the CS means common sensible knowledge. Okay, common sensible knowledge based on image that reinforced by stereotypes, while on the other hand sociological knowledge challenges stereotype. जैसा कि we have discussed above कि कॉमन सेंसिबल नॉलेज जो है वो स्टीरियोटिपिकल माइंडेड होती है. इट मेनली फोकसेस ऑन बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिशन सिस्टम, वाइल ऑन द अदर एंड सोशोलॉजिकल नॉलेज इसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए इसको चैलेंज करती है. जैसे कि द वीमेंस हु आर प्रेग्नेंट उन्हें मैटरनिटी लीव दी जाती है, तो इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हुए सोशोलॉजिकल नॉलेज कहती है वाई ओनली मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव शुड ऑल्सो बी गिवन. बिकॉज ऐसा तो है नहीं, ये तो स्टीरियोटिपिकल माइंडेड थिंग होगा कि केवल माँ ही अपने बच्चों का ध्यान देगी, ये केवल उसी की जिम्मेदारी है. तो
ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। तो इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि वाइनली पैटर्निटी लीव शुड ऑल्सो बी गिवन। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, common sensible knowledge is tradition based, while on the other hand, sociological knowledge is skeptic in nature. The meaning of skeptic means किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। तो कॉमन सेंसिबल नॉलेज क्या ट्रेडिशन पे बेस्ड होती है कि मान लिया फॉर एग्जांपल जैसे कि ले सकते हैं हम कि कॉमन सेंसिबल नॉलेज क्या कहते हैं कि वुमेंस को ज़्यादा भारी चीज़ नहीं उठा पाती, दे डोंट हैव पावर, दे कांट लिफ्ट अप द हैवी वेट एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। लेकिन इसी चीज़ को क्या स्केप्टिक किया गया है सोशोलॉजिकल नॉलेज के थ्रू कि उठा सकती हैं। नाउ वी हैव मैनी वेट लिफ्टर्स वुमेन हु ऑल्सो वॉन दी मेडल्स रिगार्ड टू दिस, जैसे कि मीराबाई चानू जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट रही और इंडिया के लिए उन्होंने मेडल जीता। सो होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन सेंसिबल इज हाईली वैल्यू लैडन, इट लैक्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी एंड सोशोलॉजिकल नॉलेज अटेम्प्ट्स टू बी साइंटिफिक। कॉमन सेंसिबल नॉलेज क्या कहती है कि वो वैल्यू लैडन रहती है, वो वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर करती है, ट्रेडिशन सिस्टम बिलीफ सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करती है और इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की कमी होती है। रिलायबिलिटी मीन्स जैसे कि अगर आज कोई चीज़ की मैंने रिज़ल्ट निकाली, अगर 10-20 साल बाद भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है उस चीज़ का, तो दैट्स रिलायबल थिंग। जैसे कि आज 2 + 2 4 होता है एंड देन we will calculate after 20 years later 2 + 2 it will be always 4, तो that's reliable thing. okay, और sociological knowledge attempts to be scientific, sociological knowledge attempts to be value free, attempts to be scientific, prefer more reasoning and logical thinking. okay, now views from postmodernist and phenomenologist. फेनोमेनोलॉजिस्ट क्या कहते हैं सोशोलॉजी के बारे में कि फेनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशोलॉजी शुड अटेम्प्ट टू स्टडी व्हाट पीपल डू इंस्टेड ऑफ वाई पीपल डू। सोशोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए, व्हाट का आंसर ढूंढना चाहिए, ना कि वाई का, क्योंकि वाई का जब आंसर हम ढूंढेंगे तो हर एक इंडिविजुअल अपने ओन पर्सपेक्टिव से उसका आंसर देगा, है ना। जैसे कि वाई का आंसर हर कोई इंडिविजुअल अपने ओन पर्सपेक्टिव से देगा, लेकिन व्हाट would be similar at some point, है ना। hope you all are getting. now views from postmodernist. postmodernist क्या कहते हैं, postmodernist claims that sociology isn't superior to common sense as there is nothing as eternal truth. वो क्या कहते हैं कि सोशोलॉजी कॉमन सेंस कुछ भी नहीं है, सब कुछ सच ही है, सब कुछ ट्रूथ ही है, ट्रूथ इटर्नल है। ओके, now moving on next slide. Similarities at some point. Similarities between common sense and sociology. So, common sense is often related to social relationship, social setting or institution which fall under the view of sociology. Basically, sociology क्या करती है? Sociology social relationship, social institution, social lifestyle, सोसाइटी के बेस के स्ट्रक्चर को इन डीपली वो स्टडी करती है और बेसिकली कॉमन सेंस भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो एट दिस पॉइंट कॉमन सेंस एंड सोशोलॉजी बोथ आर सिमिलर। कॉमन सेंस ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है सोशोलॉजी के लिए, क्योंकि सोशोलॉजी तो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने का काम करती है ना। अब जैसे कि किसी चीज़ का स्टेटमेंट दिया कॉमन सेंसिबल नॉलेज ने कि वीमेंस आर मोर इमोशनल, वीमेंस आर मोर सेंसिबल इन कंपेयर टू मैन, तो इसी चीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं सोशोलॉजी और सोशोलॉजिकल थ्योरीज। अब जैसे कि एक स्टडी की थी मार्गरेट मीड ने, कहाँ पे, पीएनजी रीजन में ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर। तो वहाँ पे ही फाउंड दैट कि द मैन आर मोर सेंसिबल एंड मोर इमोशनल इन कंपेयर टू वीमेन, बिकॉज मैन do household works and women go out for work and the men take care of their children and more emotional and sensible in compared to women. तो इस चीज़ तो ये स्टडी तो पूरी कॉन्ट्राडिक्ट करती है दिस पॉइंट को, है ना। Now moving to next point, common sensible can even be supportive of sociological theories. Sometimes
sociological knowledge becomes the part of common sensible knowledge. For clearing this point, I am taking an example, जैसे कि in Britain or in any western country, वहाँ पे एक स्टडी की गई कि वाई द मैरिटल स्टेटस कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन. ऐसा क्यों? तो वहाँ पे रिस्पॉन्स आया कि देर आर मैनी मैरिटल इश्यूज़ एंड द डाइवोर्स एंड मैनी अदर्स थिंग. तो ये जो एक स्टडी का रिस्पॉन्स आया था, एक कंक्लूजन आया था, एक कॉन्सिक्वेंस आया था, तब ये चीज़ कॉमन सेंस हो गई है वहाँ के लोगों में कि इट्स बिकेम कॉमन सेंसिबल नॉलेज कि मैरिज इज़ वेरी रिस्की, है ना. तो ये एक स्टडी का रिजल्ट था जो कि अब कॉमन सेंस बन गया है लोगों के बीच में, अमंग द पीपल. ओके, मूविंग ऑन द लास्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन दैम इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर. अब देखिए, कॉमन सेंसिबल नॉलेज और सोशोलॉजिकल नॉलेज बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, है ना. क्योंकि कॉमन सेंसिबल नॉलेज स्टेटमेंट देती है और सोशोलॉजी उसे क्रिटिसाइज़ करने का काम करती है. और कॉमन सेंसिबल नॉलेज और सोशोलॉजिकल नॉलेज दोनों ही एक दूसरे की थ्योरी में मदद करती है ना. नाउ thank you, hope you all are getting my point and it will help you. Thank you.